اس پر کسی قسم کا دوبارہ اعتراض نہیں کیا، اس پر اپنی رائے پہ زور نہیں دیا، اسے پریس نہیں کیا، اور جب انہوں نے تسلیم کر لیا اور قبول ہو گیا تو اٹ مینس کہ ان کو ایک اعتراض کا حق حاصل ہے، دوسرے اعتراض کا حق پریزیڈنسی کو حاصل نہیں ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ جو دوسری چیز آئی ہے اس کو ایوان میں پیش کرنے کا ان کو بھیجنے تک کا حق نہیں ہے، چاہے کہ آپ اس کے لیے جنرل سیشن بلایا اس میں غور کریں گے۔ تو ایکٹ کو ایکٹ ہونے دو، اگر کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے ایکٹ کے بعد لائیں سامنے، تجویز لائیں، بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ مدارس بل میں کوئی ترمیم قبول نہیں کریں گے، ایکٹ بننے کے بعد کوئی ترمیم آئی تو بات کر سکتے ہیں۔ مدارس بل پر سب سے بڑی رکاوٹ حکومت ہے، بل ایکٹ بن چکا، گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں کیا جا رہا؟ صدر کو ایک بار اعتراض کا حق ہے، دوسری بار نہیں۔ بل کو ایوان میں دوبارہ لا کر ترمیم کرنا غیر قانونی ہوگا، ہم قانون ساز ہیں، آئین کو کھلواڑ نہیں بننے دیں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا راز تو آج کھلا کہ قانون سازی IMF کی مرضی سے ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں فیٹف ناراض ہو جائے گا، آزاد نہیں تو کہہ دیا جائے ہم واقعی غلام ہیں۔ مدارس کی رجسٹریشن ہوگی تو ہی مرکزی دھارے میں آئیں گے، حالات بگاڑ کی طرف نہ لے کر جائیں، ہماری نہ سنیں گے تو پھر فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ بولے پارا چنار میں کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، غذا اور دوا کی بھی قلت ہے، علاقے میں قیام امن کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے جو ان کی رائے ہے ہی از ویری کلیئر، بالکل انہیں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشو ہے، اور میں نے جو 3 سالوں میں باتیں آپ سے سمجھی اور سیکھی ہیں وہ انگیجمنٹ اور ڈائیلاگ ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو اپنے موقف کے اوپر قائل کرتے ہیں یا دوسرے کا موقف مان لیتے ہیں، تو ہم مل بیٹھ کے انشاءاللہ العزیز دونوں صورتوں میں وزیر اعظم صاحب کا یہ پیغام ہے کہ ہم حاضر ہیں۔ اگر قانونی طور پہ یہ اسی شکل میں نکل سکتا ہے تو سر آنکھوں پہ حکومت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار، وزیر قانون کی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی کرنے کی تجویز۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا وزیر اعظم کو بل پر کسی قسم کا ابہام نہیں، قانونی معاملات پر مل بیٹھ کر غور کریں گے۔ صدر مملکت پارلیمنٹ کا لازمی حصہ ہیں، کوئی قانون سازی صدر کے دستخط کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ وزیر قانون نے کہا پارا چنار معاملے پر وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، ہمیشہ کہا پارا چنار واقعات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، امن و امان کے لیے وفاق صوبوں کو مکمل معاونت فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ کوئی بھی مذاکرات تب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک سیاسی قوتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ TORs ڈسکس ہی نہ کریں اور ان TORs کو لے کے پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں کہ یہ ہمارے TORs ہیں، لیکن پوری قوم کی نظریں اس ایوان کی طرف ہیں، یعنی فرشتے تو نہیں آئیں گے ہمارے بیچ بات کرنے کے لیے۔ اتنے بڑے لوگ سیاسی، خواجہ آصف صاحب موجود ہیں اور بڑا احترام ہے میرے دل میں، لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے۔ مذاکرات نکل آئے گا، عمران خان بھی انشاءاللہ 500 دنوں سے کھڑا ہے، ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کا اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو چلا کے دیکھ لو۔ PTI کی مذاکرات کے لیے مشترکہ کمیٹی بنانے کی تجویز، قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا سیاسی قوتوں کے ایک میز پر بیٹھنے تک کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، پوری قوم کی نظریں اس ایوان کی طرف ہیں، ہمارے درمیان خواجہ آصف جیسے بڑے سیاسی لوگ ہیں مگر ان کی زبان آگ اگلتی ہے، ملک کو غیر یقینی صورتحال سے نکالنا ہمارا فرض ہے، بات چیت کے TORs طے کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے۔ علی محمد خان نے کہا مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے، ملک چلا کر دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ، ہمارے دور میں جو بھی احتجاج کے لیے آیا سب سے بات چیت کی، سیاستدان کبھی گولی نہیں چلاتا، بات چیت کرتا ہے۔ اسد کیسر نے کہا پنجاب میں ہمارے ارکان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے اسپیکر سے بات کی گئی ہے، آپ استعفیٰ دے دیں، زبردستی استعفیٰ لیا گیا تو اسمبلی نہیں چلے گی۔ مذاکرات کی کوئی باضابطہ کوئی شروعات جو ہے نہیں کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی
इस सिलसिले में कोई रिस्पॉन्स जो है उसी वक्त हो सकता है कि उस सब्सटेंटिव किस्म का इनिशिएटिव लिया जाए। गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, नापेशगी शराइत पर मामलात बातचीत से हल होते हैं, धमकियों से नहीं। सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं और मुज़ाकरात का भी कहते हैं। पहली बार शेर अफजल की जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया, तलखियाँ बढ़ गईं तो मुज़ाकरात की कामयाबी की तवक्को न रखें। सियासी जिम्मेदारियाँ आइनी जिम्मेदारियों के बाद आती हैं। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक नज़र आ रहा था, पारा चिनार नहीं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। राना सनाउल्लाह ने कहा पीटीआई मामलात सुलझाने की बजाय खराब कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा हर इशू पर बात करने को तैयार हैं, बातचीत के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से कभी कोई बात नहीं की। सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कल मुझे अडियाला जेल जाने नहीं दिया गया, कहा गया क्लियरेंस नहीं है। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला केपी को 16 जनवरी तक हिफाजती ज़मानत दे दी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीटीआई हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए बामकसद मुज़ाकरात चाहती है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। यूनान कश्ती हादसा, दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता, बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा लापता पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। जिस कश्ती में पाकिस्तानी सवार थे उस कश्ती के अंदर पहले शगाफ पड़ा। जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें सफारत खाना अपने अखराजात पर पाकिस्तान रवाना करेगा। दूसरी जानिब हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मरने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। कार्गो बहरी जहाज से कश्ती की टक्कर हुई, डूबने वाली कश्ती का इंजन ठीक था ना ही हालत। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवानों की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। मुतासरा नौजवानों ने बताया कश्ती बहुत छोटी थी, पानी बहुत तेज था। कश्ती में 84 से ज़ायद अफराद सवार थे, अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। 40 के करीब अफराद ही बच पाए। मोबाइल फ़ोन भी समंदर में गिर गए, घर से कोई राब्ता नहीं। 3 से 4 दिन समंदर में गुजारने पड़े। मुतासरीन का दूसरों को भी गैर कानूनी सफ़र इख्तियार न करने का मशवरा। पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है। हालिया बजट में क्लाइमेट चेंज फंड्स पर क्या काम हुआ? जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के साथ किया गया $100 अरब का वादा पूरा नहीं किया जा रहा। हम ट्रक की बत्ती के पीछे उछल रहे हैं मगर मिल कुछ नहीं रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने कहा पाकिस्तान मौसमियाती एतबार से ज़्यादा ख़तरे वाले 10 ममालिक में शामिल है। अब तक तकरीबन $7 करोड़ देने का वादा किया गया है। लाहौर की फ़ज़ा फिर आलूदा होने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 रिकॉर्ड, दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। दिल्ली 764 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। दूसरी जानिब बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। स्कर्दू, बगरोट और गोपस में पारा -7 तक गिर गया। गिलगित -6, अस्तोर, हुंजा और कोयटा में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कराची में सर्द मौसम बरकरार, पारा 10.6 डिग्री रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के लिए दुबई का इंतखाब, मामला तय। शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। पीसीबी ने भारत के लिए मैचेस के लिए दुबई को फाइनल कर लिया। श्रीलंका के साथ भी इस हवाले से बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक आईसीसी प्रेस रिलीज के जरिए शेड्यूल का ऐलान करेगी। T20 के बाद वनडे का मैदान, शाहीनों का नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स फॉर्मेट के साथ किस्मत बदलने के ख्वाहां। वनडे मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम की वापसी। सुफियान मुकीम और उस्मान खान पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। किसी एक का डेब्यू मुतवक्के। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान पहला वनडे जीतने के लिए पुरअज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जनूबी अफ्रीका को हराने के लिए हर शोबे में अच्छी परफॉर्मेंस देना होगी।
190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाअत, हतमी दलाइल जारी, बुशरा बीबी अदालत में मौजूद। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला 7 जनवरी तक मौखर। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने समाअत की। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। मरियम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के लिए चार्जिंग स्टेशंस लगाने जा रहे हैं। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी गई। चीनी कंपनियां जल्द पंजाब में आकर मंसूबे शुरू करेंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास, डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 पर बहस। वज़ीर ममलकत शीज़ा फातिमा की ब्रीफिंग, बताया रेटेप और दीगर चैलेंजेस कानून से ख़त्म नहीं हो सकेंगे। ब्यूरोक्रेट्स और वजारतों में फ़ाइलों के फंसने वाला ये रवैया ख़त्म होगा। हर वजारत अपना अपना डेटा सेंटर बना रही है जिसे बंद होना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स की मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। बिल सैयद खुर्शीद शाह ने पेश किया। माहौलियाती जवाबदेही बिल और ज़ाब्ता फौजदारी की मुख्तलिफ शिकों में तरमीम का भी बिल पेश किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। IMF की PIA निजगारी के लिए सेल्स टैक्स छूट और एक्टिविटी लॉसेस ख़त्म करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक लीज पर तैयारों को माहाना 81 लाख रुपए तक सेल्स टैक्स छूट की सहूलत मिलेगी। PIA की निजगारी के लिए बर्डिंग 350 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। PIA की निजगारी और रोजवेल्ट होटल की फ़रोख्त से अदायगियाँ सेटल की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कतर रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सरकारी दौरे पर मिस्र पहुंच गए। इसहाक डार D8 ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। D8 इजलास 19 दिसंबर को काहिरा में होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी हम मनसब अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन, मुनशियात स्मगलिंग से निमटने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सखर में सी आर्ट्स के 7वें सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कोशिश है सिंध भर में सी आर्ट्स के मज़ीद सेंटर बनाए जाएं। कराची में स्पेशल सिटी बना रहे हैं। सिंध हुकूमत तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। बानी PTI दुश्मन ममालिक के पेड एम्प्लॉय हैं। PTI ने कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अली अमीन गंडापुर किसके एजेंडे पर चल रहे हैं। बानी PTI का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है।